व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा फेरबदल, कांग्रेस का आरोप। विद्यासागर यूनिवर्सिटी में स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी कहने पर विवाद। वडोदरा में पुल गिरा, 18 की मौत, रेस्क्यू जारी। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा फेरबदल। विजयवाड़ा में कांग्रेस नेता वी गुरुधाम ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार में इस साल अक्टूबर या नवंबर में राज्य चुनाव संभावित है। उनका कहना है कि राज्य की मतदाता सूची में 8 करोड़ से अधिक नाम दर्ज है, जो इस देश की सबसे बड़ी मतदाता सूचियों में शामिल करता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी बड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जब महागठबंधन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाने को तैयार है, तो जवाबी राजनीति के तौर पर भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार ने नया कदम उठाया है। The state elections are due to the Bihar in the month of November or October of this year, because 5 years have been completed Nitish in the Nitish rule. So as usual, according to schedule, the election commission is going to conduct the elections for Bihar. I think the Bihar electoral rolls contains the list of more than 8 crore population voters list. So this is the biggest after Uttar Pradesh. So the Bihar is having such importance in the ensuing elections. Now the point is Mahagathbandhan is formed and they are going to fight against the Nitish and BJP regime. So to avoid this, as a counterblast to this, they have started the project, just like Sindoor against Pakistan. They have started the program of SAR, Special Intensive Revision. What does it mean, Special Intensive Revision? So as usual, the Bihar voters and Bihar people are there all over the India. They are working in somewhere in Bombay, Calcutta, Madras and other places as a manual workers. So they are having names in the voter list, but they are not having the ID card in the Bihar. So taking advantage of this non-production of the ID card, they want to remove the voters in these elections, so that the local leaders, local influential people and local political parties may gain more and more. That's the object of the endeavor of the BJP government and the Nitish Kumar government for the ensuing elections. They want to bag more seats and votes in the ensuing elections by the BJP and Nitish Kumar. So this is already guessed by the Congress party, and Rahul Gandhi made a counter attack against this special intensive revision process of the Bihar government. And he has already mentioned that in Haryana as well as the Maharashtra, the BJP came into power by virtue of misusing the electoral roll. So now this time also in Bihar also they are going to use the same method and process. So as stated by the Rahul Gandhi ji, the Bihar government has started this special intensive revision. This intensive revision is not useful to the voters of the Bihar people. There is a voter list containing the 8 crore people, and the 8 crore people are not eligible to vote for in the ensuing elections by virtue of this revision. So this is nothing but a game of the BJP and Nitish Kumar to come to the power by using force and undue influence, by removing the voters who are in favor of the Gathbandhan. So this is very bad on the part of the BJP and Nitish Kumar government, and Andhra Pradesh Congress Committee is condemning this, and All India Congress Party is very serious with regard to this SAR, the progress of the SAR, and we condemn this, and we request and we demand the government of Bihar not to proceed with the special intensive revision and not to delete the voters from the Bihar and genuine voters from the Bihar. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विद्यासागर विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र पर विवाद। पश्चिम बंगाल के विद्यासागर विश्वविद्यालय में एक बड़ी गलती सामने आई है, जहां सनातन इतिहास की परीक्षा के प्रश्न पत्र में भारत के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा गया। इस शब्दवाली के चलते न सिर्फ छात्रों और शिक्षकों में आक्रोश है, बल्कि ये मामला अब राजनीतिक रंग भी पकड़ने लगा है। इस विवाद पर सफाई देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीपक कुमार ने कहा कि ये एक मुद्रण संबंधित गलती थी जो प्रश्न पत्र के मॉडरेशन के दौरान हुई और दुर्भाग्यवश प्रूफ रीडिंग में भी गलती
पकड़ी जा सकती है। Printing mistake occurred in the question paper of undergraduate history examination yesterday. When it has been detected in the late evening, myself has inquired the matter with the controller of examination and asked for a report from controller of examination as well as from chairperson of undergraduate board of studies of history. After getting the report from both of them, we came to know that during moderation, the error occurred, which was unintentional and not detected later on also during proofreading. Considering the seriousness of the words in English and Bengali mismatch, we have convened a meeting today with head of the department, undergraduate board of studies study chairman, and all the teachers, faculty members of history department, and dean of faculty of arts, controller of examination, registrar, undergraduate council secretary. All of them have been involved in the review, scrutiny of the report, and after going through it, all have unanimously recommended that the person, the teacher involved in the moderation on the day, concerned teacher, will be replaced by new member. And the board of studies chairman will also be exempted from his duty of chairmanship. The senior-most teacher of the department of history of the university will be entrusted with the job, so that this will not be recurred in future, not only in history, in any other subjects of both undergraduate and postgraduate level. And university has taken measures to address the issue at all level, not to avoid the recurrence of this issue, by issuing a circular to all the departments, all the teachers. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वडोदरा में पुल हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत। गुजरात के वडोदरा जिले में दिल दहला देने वाली घटना। महिसागर नदी पर बना एक 4 दशक पुराना पुल बुधवार सुबह उस वक्त ढह गया जब उस पर कई वाहन गुजर रहे थे। हादसा वडोदरा के पादरा कस्बे के पास गंभीरा गांव में हुआ। पुल का एक हिस्सा अचानक टूटने से वाहन सीधे नदी में गिर गया। प्रशासन के अनुसार अब तक 18 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और 2 लोग अब भी लापता है।
अरे सीधा तो जाओ, ऐसे जा रहे हो तो सीधा तो जाओ कम से कम। बैलेंस नहीं बनेगा। और थोड़ा धीरे धीरे आना, बिल्कुल स्लो स्लो आना, आराम से। लेकिन मुझे इसका और इसका सेम जो रहेगा वही लगेगा, लग रहा है ये छोटा बड़ा होगा। दूसरे में देख, हाँ पॉकेट में देख लेना। मूवमेंट वाला शॉट मैंने स्टैटिक करता। कंपनी वाली इधर आ जाओ। ये भी आपका बनेगा। अरे सीधा तो जाओ, ऐसे जा रहे हो तो सीधा तो जाओ कम से कम। बैलेंस नहीं बनेगा।
धीरे धीरे आना, स्लो स्लो आना, आराम से। लेकिन मुझे इसका और इसका सेम जो रहेगा वही लगेगा, लग रहा है छोटा बड़ा होगा। दूसरे में देख, हाँ पॉकेट में देख लेना। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पप्पू यादव बोले, जनता देगी साजिशों का जवाब। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वे मतदाता सूची संबोधन के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों पर विचार करें। इस निर्देश के बाद अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया है। बड़ा आरोप, उसके साथ पे बहुत बड़ा धब्बा लगा है, क्या कहेंगे? भैया चुनाव आयोग तो भटियारा आयोग, चपरासी है वो, बीजेपी आरएसएस आरोप। चुनाव आयोग तो बिल्कुल, आपको TN सेशन है क्या? हा? कोई राव साहब आप बचे हैं क्या? अब तो घर की चपरासी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? जो हम बंद का कॉल किए, इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप भाई 2.25 करोड़ लोग हमारे बिहार के बाहर हैं, आप उसकी जिंदगी हराम कर रहे। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट तैयार किया। आज़ादी के बाद आप इसी वोटर रोल पर आप नरेंद्र मोदी जी, आप भी PM बने, अटल जी भी बने। आप 11 साल से आपको पता नहीं है। अरुण जेटली का आप लॉ मिनिस्टर होते हुए वो बयान याद कीजिए कि किस परिस्थितियों में इलेक्ट्रल लॉ में नाम जुड़ेंगे और हटेंगे। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। और आपने आधार कार्ड, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मनमोहन सिंह जी ने इसको लाया और सारे राशन कार्ड से लेकर के जो हमारा वोटर कार्ड है सब जुड़ा हुआ है, फिर आप मानने को तैयार नहीं है। और अब आप कह रहे हैं 14% ही मात्र मैट्रिक किया हुआ है। EBC का कोई भी जात, दलित, ST SC का कोई भी कास्ट, 2 करोड़ जो बाहर हैं उसमें सभी जाति, और जो यहाँ पर मैट्रिक नहीं किया वो कहार है, कुमार है, ततमा है, नुनिया है, चंबंसी है, निषाद है, मला है, केवरत है, गंगोत्री है, गोरी है, शर्मा है, बढ़ई है, पंडित है, कुमार है, कमार है, चमार है, पासवान है। ये सभी जाति को देखिए। 2% भी मैट्रिक नहीं किया, 0.9% भी मैट्रिक इसकी बेटी नहीं की है, और आप मैट्रिक की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं जाति पर जन्म प्रमाण पत्र दो। तुम कौन? हमारा बाप दादा जन्मा यहीं, मेरा बेटा जन्मा, दादा जन्मा, हमसे तुम नागरिकता मांग रहे हो। कौन मेरे बाप दादा के पास जन्म प्रमाण पत्र है जो तुम मांग रहे हो? रयासी मांग रहे हो। 73% बाढ़ में हम फूस और भीत वाले लोग हैं, बाढ़ में खत्म हो जाते हैं। मेरे पास कोई कागज नहीं है, तो फिर तुम ये जो हमारा बैंक का कार्ड है, आधार का कार्ड है, राशन कार्ड है, तुम इसको मानने को तैयार क्यों नहीं हो? वोटर कार्ड है, क्या चाहते हो? दलित, ST SC EBC वोट नहीं डाले। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा को हटाने के लिए जरूरी है विपक्ष की एकजुटता, बोले अमीनुल इस्लाम। असम की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। AIUDF के विधायक अनीमुल इस्लाम ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड
डेमोक्रेटिक फ्रंट आगामी विधानसभा चुनाव में 35 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के सीट मौलाना बरहम नाज़िम से भी मुलाकात की, इसमें ऊपर भी बातचीत किया है, तो कैसे क्या है? देखिए, हमारा जो पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इस पार्टी की तरफ से हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। उस दिन हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट सदर मुंबई में बुलाया था हम लोग सब एमएलए को, कुछ पार्टी लीडर्स को। हम लोग एक प्लानिंग बना रहा है कि 26 में हम लोग 26 में हम लोग कैसे फाइट करेंगे, और एक डिसीजन हो गया कि 35 सीट 1-2 प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग खेलेंगे। सारा स्टेट हम लोग नहीं खेलेंगे। हम लोग नहीं चाहते कि सेकुलर वोट को डिवीजन हो और बीजेपी को फ़ायदा मिले, और हम लोग अकेला लड़ने के लिए कोशिश कर दिया। और हम लोग ग्रास रूट लेवल में वार्ड कमेटी, जीपी कमेटी जो है, ये सब का काम चल रहा है। हम लोग पहले पार्लियामेंट इलेक्शन में जितना हम लोग को ख़राब हुआ था, पंचायत इलेक्शन में उसमें 33% वोट हम लोग को इम्प्रूव हुआ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले से भी इम्प्रूव हुआ, तो अल्टीमेटली हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग को असेंबली में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा नतीजा आएंगे। और हम लोग अकेला लड़ने के लिए एक फार्मूला बनाया। पार्टी का इंटरनल काम बहुत काम चल रहा है, वो लोग हम लोग नहीं बताएंगे, बाद में देखेंगे। अगर कांग्रेस की तरफ से एलडीएफ को कोई प्रीपोल अलायंस के बारे में सोचना बातचीत करना पड़े, तो अगर ऑफर आए तो हम लोग अभी उन लोग को साथ को जाने के लिए तैयार है नहीं। अगर गौरव गोगोई नया पीसीसी प्रेसिडेंट होके आया, अगर कांग्रेस ने ऐसे सोचा कि ऑल अपोजिशन इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए बीजेपी को खदेड़ने के लिए, अगर ऐसा उन लोग को सोच है इन रियल सेंस, अगर वो लोग आएंगे तो पार्टी नो डाउट मेरा ख्याल से पार्टी सोचेंगे इसके बारे में। वो वक्त अभी तक आया नहीं। हम लोग ऐसा कुछ प्रपोजल आएंगे तो पार्टी नो डाउट सोचेंगे और इसके बारे में हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे। अगर अपोजिशन एक नहीं होंगे तो क्या अलग अलग से? देखिए, ये जो अभी अपोजिशन, पूरा अपोजिशन एक नहीं करेंगे तो एक फ्यूडल एक्सरसाइज होगा, और कांग्रेस का हाथ में आज इतना क्षमता भी नहीं है कि अकेला कुछ बना सके। तो इसके लिए मेरा ख्याल से सबको सोचना पड़ेगा, सबको पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा, और आने वाला दिन में एक अच्छा नतीजा पे आना पड़ेगा, तभी हम लोग बीजेपी को हटा सकेंगे। अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटीज मैं नहीं देखता हूँ कि कोई पार्टी अकेला बीजेपी को हरा सके। ऐसा पोजीशन आसाम में नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा पार्टी, उभरने वाला पार्टी कांग्रेस को पॉजिटिव में सोचना है और डिसीजन लेना है। लेकिन आपकी पार्टी अपने डोर ओपन रखा है, मेरा ख्याल से हम लोग तो 35 में खेलेंगे, हम लोग डिक्लेयर कर दिया। अगर अपोजिशन सब एक जगह होने का जरूरत समझे तो पार्टी नो डाउट इसके बारे में सोचेंगे, मेरा ख्याल से सोचेंगे। जब ये मौका आएगा तभी ना बात किया जाएगा। आज का दिन में हम लोग का डिसीजन है कि हम लोग अकेले लड़ेंगे, 35 सीट में लड़ेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक राष्ट्र एक चुनाव को मिला राज्यों का समर्थन। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं ने अब जोर पकड़ लिया है। इस विषय पर बनी संसद की संयुक्त समिति जेसीपी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि समिति देश के विभिन्न राज्यों में अध्ययन दौरे पर है और अब तक मिले फीडबैक में ज्यादातर लोगों ने, सांसदों ने इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में समिति ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और नागरिक समाज के सदस्यों से मुलाकात की। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के जो हैं, जो स्टडी टूर के लिए हम गए थे विभिन्न राज्यों में, 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, तो मेरा कहना है कि महाराष्ट्र में गए, वहाँ के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सारे लोगों ने आए और अपने जिसको कह सकते हैं हम सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, सबका ये मानना था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का उनका एक्सेप्शन भी है कि उनको ये फियर है कि भाई नेशनल इश्यू वर्सेज स्टेट इश्यू का जो उन्होंने ये पॉइंट रेज किए। तो उसके बाद में हम उत्तराखंड में भी गए। उत्तराखंड में भी लोगों ने कहा कि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर विषम परिस्थितियों में वहाँ दूर दराज इलाके में जाना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पर टीचर्स का एंगेजमेंट वगैरह, और सिविल सोसाइटी के लोग भी वहाँ आए थे।
सबने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने कही। और उसके बाद में हम चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स और स्पीकर्स वगैरह, ये सारे लोगों से और सिविल सोसाइटी के लोगों से हमारे बात हुई, यूनियन टेरिटरीज वगैरह सारा मिला के। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और सब लोगों का जो है इनपुट हमें मिले। और उसके बाद में हम हिमाचल प्रदेश गए, वहाँ के भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहाँ के स्पीकर वगैरह सभी लोग आए और गवर्नमेंट भी आई, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी वगैरह सभी जगह। तो सबका जो है हम इनपुट ले रहे हैं। सारे कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो बहुत इसमें कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं। अपने आप के पार्टी लाइन से भी ऊपर उठ करके हम सारा, हमारा सोच है कि जो हमारी रिपोर्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट में बने, इस तरह का विचार है। और आज भी जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कहर और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, ये हमारे सामने कमेटी के सामने इंटरेक्शन के लिए आ रहे हैं। और हमें लगता है कि उनसे भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, भारत के संविधान सम्मत ये कार्रवाई है या नहीं है। और दूसरा जो है उससे सबसे बड़ा कि मैकेनिज्म क्या हो सकता है। तो जहाँ पर भी हमने देखा कि रुझान जो है पूरा देश में एक तरह से परसेप्शन बन गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि शुरू में 4 इलेक्शन जो हैं 1967 तक साथ हुए और उस समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुआ करते थे। और उसके बाद में 1957 में तो आप देखेंगे करीब 7 विधानसभा को डिसॉल्व किया गया 7 चुनाव कराने के लिए। और वैसे भी हम आकर देखें, जब फेडरलिज्म वगैरह की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 14 सेक्शन 14 और 15 के तहत रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट जो है उसमें पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव कराने के लिए 6 महीना पहले जो है वो नोटिफिकेशन कर सकते हैं। तो कल्टेल चुनाव का, जहाँ तक कल्टेलमेंट का जो है वो हमारे चुनाव आयोग को भी 2-3 महीने का अधिकार है। तो इसीलिए अब क्वेश्चन ये है कि फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इन चीज़ों पे जो है अभी दिल्ली में जो आज जो आएंगे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोग, उनके साथ मंथन होगा और मेंबर्स जो हैं अपने सवाल रेज करेंगे। सर, ऑपोजिशन पार्टीज का कितना आपको फेयर रहे स्टडी के लिए? देखिए, अभी सपोर्ट और अपोजिशन की बात नहीं है, अभी हम सारों से इनपुट ले रहे हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग भी इनपुट मांग रहे हैं, वो भी वही इनपुट मांग रहे हैं जो हम भी मांग रहे हैं। तो हमारी क्वेरीज जो हैं ऑलमोस्ट सेम होती है। हम चाहते हैं कि जो भी विरोध, अगर कोई विरोध की बात आती है तो हम वो भी पूछते हैं, जिससे कि हम पता लगे कि भी कि उसमें उसको हम कंसिडर कर सकें, एडजुडिकेट कर सकें। जब हम सारे साथ बैठे तो हम दोनों तरह के व्यू पॉइंट ले रहे हैं और लेने के बाद में कमेटी जो है सब लोग हम डेलिब्रेट करेंगे उसके बाद में। तो अभी अपोजिशन वगैरह की बात, कोई ऐसा सवाल ही नहीं उठा, अभी तो कोई स्टेज ही नहीं आई कि जो कि जब कमेटी की रिपोर्ट तैयार होगी, अडॉप्ट होगी, तब बात आएगी कि भाई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्ताफ ठाकुर बोले वे शहीद नहीं दंगाई थे। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को कश्मीर शहीद दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर एक बार फिर सियासत जंग तेज हो गई है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य क्षेत्रीय दल ने इस दिन को शहीदों की याद में अवकाश घोषित करने की मांग करते हैं। वहीं भाजपा ने इसका विरोध किया है। उस दिन कश्मीरी पंडितों को लूटा गया और मार डाला गया, इसलिए भाजपा इस दिन को काला दिवस मनाती है। देखिए, 13 जुलाई को छुट्टी का मनसूख होना बहुत ही अच्छा कदम है। अगर हम 13 जुलाई की जो उस दिन लोग मारे गए, अगर वो शहीद होती तो जो कश्मीरी पंडित है वो उसको काले दिन के तौर पे मना रहे हैं। जैसे कश्मीरी में पंडित को भट्ट कहते हैं, भट्ट लूट दिवस, मतलब उस दिन कश्मीरी पंडितों की लूट मार और उनकी हत्या की गई थी, इसलिए उस दिन को ब्लैक डे के तर मना रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको शहीद नहीं मानती है। वो दंगाई थे, फसादी थे, जिन्होंने अपने साथियों जो जेलों में थे या जिनकी ट्रायल चल रही थी उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने उस वक्त ये वायलेशन की है। और उसमें सबसे बड़ा आप एक कैरेक्टर जो देखेंगे वो कादिर नाम का एक कैरेक्टर था जो पाकिस्तान से आया था और उसको इसीलिए लाया था क्योंकि वो फसाद बर्पा करने में बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था। ये सारा जो कराया था वो उसी कादिर ने
भारतीय जनता पार्टी इनको शहीद नहीं मानती। हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस या और भी जो रीजनल पार्टीज अब इसमें शामिल हो गई उनको मानती, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी इनको शहीद नहीं मानती। अभी इशू बन रहा है, कह रहे हैं कि अब फिर से इसको स्टेट हॉलीडे या फंक्शन कर देखिए, अगर करा सकते हैं तो कर लीजिए ना। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में उतनी ताकत है, अगर उनमें इतना दम है, करे ना अनाउंसमेंट इसको छुट्टी की, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है इसको कहती है तो करे ना छुट्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद इस दिन को, जिस दिन कश्मीर में पंडितों का कत्ल हुआ, लूटमार हुई, वैचारनाग आप देखिए और दूसरी जो प्लेसेस है जहां पंडितों को खुलेआम मार दिया गया है, हम इसको शहीदी दिवस के तौर पे नहीं मानते हैं और न हम उनको शहीद मानते हैं। अगर इनमें इतना ताकत है, इतना दम है तो छुट्टी कर दीजिए ना, कौन रोकता है। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, खाली पॉलिटिक्स करते हैं इस इशू पे, जो उन्होंने 1934 से की है, 1947 से जो पॉलिटिक्स की, आज भी वही पॉलिटिक्स करते हैं। बेसिकली कश्मीर की जो अच्छी हिस्ट्री, जो सच्ची हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को इन लोगों से छुपा के गलत प्रोपेगेंडा यहाँ पेश कर। अब वो कह रहे हैं कि अगर उनको परमिशन नहीं देगी तो वो जाएंगे वहाँ किसी भी सूरत। देखिए, वो लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब देखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट देखती है, ये उनकी काम है, उनको परमिशन दे न दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर गवर्नमेंट लेवल पे इन्होंने मनाने की कोशिश की, उसको पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालफत करेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रमोद तिवारी बोले, ये हमारी शुरुआती जीत है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों पर कांग्रेस ने संशोधन जताया। लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये हमारी शुरुआती जीत है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की ये मांग रही है कि मतदाता सूची को अपडेट करने के दौरान केवल एक दस्तावेज पर निर्भर न रहकर आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य वैध पहचान पत्रों पर भी विचार किया जाए। देखिए, 75 साल तो पूरे होने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के, तो उन्हें भी सेवानिवृत्त होना चाहिए, क्योंकि तो आरएसएस के कार्यकर्ता कहते हैं अपने को, और आरएसएस कार्यकर्ता के सर्वोच्च नेतृत्व से ये संदेश आया है कि भाई जब 75 हो जाओ तो जरा बाजू हट जाओ, बगल हट जाओ। यही करके तो आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी और तमाम हमारे नेता, उनको किनारे किया गया। तो क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और आरएसएस की परंपरा का पालन करेंगे? मोहन भागवत ने तो अपना फर्ज निभा दिया, उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी, याद भी दिला दिया कि मोदी जी सितंबर में 75 होने जा रहे हो, जरा बाजू हो जाओ, दूसरों के लिए रास्ता खाली करो। अब देखना है मोदी जी पर सत्ता की लालच भारी पड़ती है या जिसने उनको प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, या जिसको जीवन भर उसके कार्यकर्ता रहे, उसके सिद्धांतों को मानते। आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। सर, बिहार मतदाता सूची जो अभियान चलाया जा रहा था, वहां पे उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? हम इसे अपनी जीत के तौर पे मानते हैं। जो अभी शुरुआती रुझान आए, जो शुरुआती बातें कही गई हैं ऑब्जर्वेशन में, उन्होंने मान लिया। राशन कार्ड को भी गणना के लिए मानना चाहिए। दस्तावेजी प्रमाण के रूप में मतदाता सूची संशोधन के समय आपको आधार कार्ड को भी मानना चाहिए। तो इसी तरीके से यही तो हमारा कहना था कि आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड को गणना के लिए दस्तावेजी प्रमाण के रूप में शामिल करना हमारी मांग थी। तो हमें तो लगता है फाइनल ऑर्डर जो आएगा, और अगर ये इन तीनों को नहीं मानेंगे या ऐसे जो पहचान पत्र नहीं माने, तो सुप्रीम कोर्ट निसंदेह दरवाजा उसका खुला रहेगा, उसका डंडा उठा रहेगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो डंडा चल जाएगा। सर, बिहार में जिस तरह से हत्याओं का मामला सामने आ रहा है, कारोबारी की हत्या की गई है, बालू कारोबारी की, कैसे देखते हैं? देखिए, अब खबर तब नहीं बनती बिहार में जब कोई हत्या हो जाए।
खबर तब बनती जिस दिन हत्या ना हो। तो रोजी हो रही है पटना में, बिहार की राजधानी में, जहां पता नहीं अचेतन अवस्था में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या चेतन अवस्था में हैं, ये तो वो जाने। आज उनको फिर सलामी दी अपराधियों ने। रमाकांत यादव, एक कारोबारी, बालू का कारोबारी, अपनी नियमित टहल रहा था बाग में, उड़ा दिया गया गोलियों से। जब उसे ले जाया गया हॉस्पिटल तब तक उसके प्राणांत हो चुके थे, सांसें थम चुकी थी। क्या उसका दोष यही कि वो पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का या हमारे गरीब जो सवर्ण है उस श्रेणी से आता है? उसके पास हिफाजत के लिए गन शैडो नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं, कब तक शर्म करोगे, कब शर्म करोगे? कितनी और जाने लेकर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू तुम्हारी सरकार जागेगी और नागरिकों को सुरक्षा देगी? शर्म करो। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोयम्बटूर से कपास क्रांति की शुरुआत, बोले शिवराज सिंह चौहान। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज कपास उद्योग से जुड़े लोगों का एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर से हमें कपास क्रांति की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मंच पर कपास की खेती से जुड़ी समस्याएं, उत्पादन लागत, उत्पादकता बढ़ाने की रणनीतियां और तकनीकी नवाचारों पर विस्तार से चर्चा होगी। आज कोयम्बटूर में कॉटन से जुड़े हुए सभी लोग आए हैं। यहाँ हमारे सभी राज्यों से जो कॉटन उत्पादक हैं, कॉटन उत्पादक राज्यों के किसान यहाँ पर हैं। देश के टॉप के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यहाँ हैं। आईसीआर के डीजी से लेके जिम्मेदार सारे पदाधिकारी यहाँ हैं। तो यहाँ फार्मर्स है, यहाँ वैज्ञानिक हैं, कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ राज्यों के, केवल कॉटन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री आए हैं। हमारे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी भी आए हैं। केवीके के लोग हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं। और हम सब मिलके एक नई कॉटन क्रांति की कोयम्बटूर से शुरुआत करेंगे। आज दिन भर डिस्कशन होगा कॉटन के उत्पादन में आने वाली समस्याओं पर। कॉटन की, कपास की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़े, उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ लागत में कमी कैसे आए। कॉटन में कई तरह की बीमारियां लगती है, पिंक बॉल वर्म जैसी, गुलाबी सुंडी जैसी, उनका मुकाबला कैसे करें। कॉटन के उन्नत बीज कैसे और आए जिनमें लॉन्ग स्टेपल वाला कॉटन हो। इंडस्ट्री की ज़रूरत जैसी वैसा कॉटन हमारे किसान पैदा करें और किसानों का प्रॉफिट बढ़े। तो इसमें हम आधुनिक टेक्नोलॉजी हो या आईसीआर के वैज्ञानिक शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे आज इन सब समस्याओं को सुनकर। और कई तरह के प्रयोग चल ही रहे हैं जिसमें हम कॉटन में लगने वाली बीमारियां, जो बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए और मारने के लिए एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई स्मार्ट ट्रैप है ये जो सामने आप देख रहे हैं। इसमें तुरंत पता चल जाता है कि कितने कीड़े, कितने बैक्टीरिया, वायरस खेत में हैं और विदिन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर पेस्टिसाइड का उपयोग करके उनको मारा जा सकता है। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी क्या क्या हो सकती है, मैकेनाइजेशन कैसे करें ताकि पिक करने में जो ज़्यादा मजदूरी लगती है उसमें कमी आए। तो आज कॉटन पर महामंथन होगा कोयम्बटूर में और हम कॉटन की खेती को फ़ायदे का धंधा किसान के लिए बनाने के लिए और कॉटन इंडस्ट्री की ज़रूरत पूरी करने के लिए आज दिन भर बैठेंगे और एक रोड मैप बनाएंगे जिससे किसान भी खुशहाल हो, गुणवत्ता कॉटन की बढ़े
इंडस्ट्री की ज़रूरत पूरी हो, क्योंकि काटन से कपड़ा बनता है जो हमारे देश की ज़रूरत है। बाहर से काटन इंपोर्ट ना करना पड़े, बल्कि हम इतना कपास उत्पादित करें ऐसी क्वालिटी का जिसको हम एक्सपोर्ट करें, तो आज उसी पर हम चिंतन करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागबानी में तकनीकी नवाचार से आया बदलाव। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अब बागबानी क्षेत्र में नई क्रांति देखने को मिल रही है। यहाँ के किसान अब उच्च धंतव्य वाली सेब की खेती को अपना रहे हैं, जिससे उनका आय में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। नर्सरी प्रभारी अब्दुल राजाक ने बताया कि उनकी यूनिट में ग्राफिटी तकनीक के जरिए सेब, खुबानी, अखरोट जैसी कई फसलें उगाई जा रही है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ कहीं ऑर्किड है। हाई ट्रेंडिंग ग्रीन हाउस से खेती और पौधों की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आया है। तो सर बड़ा अच्छा सी पता नहीं क्या कर सर आप कैलकुलेटर स्क्रिप्ट तो प्लीज भेज दो, मेल कर करो प्लीज। ठीक है, मल्टीमीडिया से पता चलता है सर। ठीक है। अच्छा फॉरेस्ट उधर ड्यूटी इधर आओ। अच्छा इसलिए इतना शकला नहीं तक इतना और चीज वो बच्चे माइक लेना, वो उधर पड़ा रखो। माइक से नहीं बोलूंगी। तू ही बोलना लेने भाई बोले तकरीबन एक पेटी कितने? पेटी हिसाब से नहीं, किलो हिसाब में, और फिर आगे पेटी कितना किलो हो जाना? 80 रुपये। 80 15 दिन की सेब जरा जी श्रीनगर में सेब ए नंबर 1 इस रन सेब है ही नहीं सेब में मार्केट आगे इन्होंने जिम्मे भी आगे सुनवाना उत्थे भी लवाओ ना, उत्थे लवा उन्होंने 1.5 कनाल भी चढ़े पे खाना पीना सब इसी से निकालते। पहले मक्खी वगैरह होती थी तो उसका इतना फायदा नहीं था, उसका फायदा नहीं था, गिर जाती थी कभी कुछ। अभी बहुत ज्यादा बाग लगे हैं इधर और भी लगेंगे, बहुत ज्यादा इसमें बदलाव आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हमें ये मेहनत भी अच्छी करते हैं तो सर, मेहनत भी हम करते हैं तो जी सर बहुत अच्छा हुआ। मेहनत लगती है सर इसमें, इसको काफी फिर गोदाई वगैरह भी करनी पड़ती। सर पहले मेरे एक अलग फोटो तेरे बहुत अच्छे वो ले लीजिए, ये इधर ले लो सर, ये वाले अच्छा। सर मेरे मेरा नाम मोहम्मद रजाक है, मैं टेक्नीशियन फास्ट हूँ। सर ये हमारी जो नर्सरी साज नर्सरी है, तो इस पर यहाँ पर हमने सीड लगाया हुआ था, उस पर हमने ग्राफ्टिंग करके प्लांट दिए हैं। हमारे पास यहाँ पर एप्पल के प्लांट हैं, उसके बाद पिकानट है, वालनट है, अप्रिकॉट है, प्लम है। ये सीड पर जो हमने लगाए थे उस पर हमने ग्राफ्टिंग की है, तो ग्राफ्टिंग करके
हम ये प्लांट जो है बाहर फील्ड में देते हैं। इनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और यहाँ पर पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है राजौरी में काफ़ी प्लांट जो है बाग लगे हुए हैं। और हमारे थाना मंडी में बहुत से आर्चर्ड लगे हुए हैं, एप्पल के आर्चर्ड हैं, हमारे पास वालनट है। तो इधर हम जो प्लांट तैयार करते हैं पिकनट वगैरह, तो हमारे पास ये हाईटेक हैं 5 ग्रीन हाउस हैं, इनमें ये हम प्लांट तैयार करते हैं। और हर हाईटेक बने इनका कितना फायदा हो रहा है? हाईटेक का बहुत फ़ायदा हो रहा है इसमें, क्योंकि हम प्लांट जल्दी तैयार होता है, तो इससे हम बहुत ज़्यादा प्लांट तैयार करते हैं। तो आज कितना बदलाव आ रहा है? जो सेब के बाग लगे हैं थाना मंडी नाले पूरे में सर, हाँ, लोगों ने जो है काफ़ी जो गरीब लोग थे उन्होंने फ़ायदा लिया। हाँ, काफ़ी यहाँ फ़ायदा हो रहा है लोगों को, क्योंकि हमने ये प्लांट लगाए हुए हैं। तो आटा इंडस्ट्री प्लांट भी यहाँ पर लगे हुए हैं जो 1 साल के बाद फ्रूट देता है। तो वालनट लगा हुआ है, वो भी 1 साल के बाद फ्रूट देता है। ऐसे अच्छे अच्छे बाग लगे हुए हैं इधर साज में, थन्ना मंडी में, धराल में, काफ़ी एरिया में लगे हुए हैं। सेब जो तैयार हो रहा है बिल्कुल। हाँ, सेब तैयार हो रहा है, ये क्योंकि ये कश्मीर से 1-2 महीना पहले तैयार हो जाता है सेब यहाँ का। तो कितना बदलाव आया है हार्टिकल्चर? यहाँ पर हार्टिकल्चर में काफ़ी बदलाव है। इसमें हमारे डायरेक्टर हार्टिकल्चर और हमारे चीफ हार्टिकल्चर, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर और IDO का इसमें काफ़ी रोल रहा है। इस नर्सरी से प्लांट जो देते हो सर, सेब के हर किस्म के क्या प्लांट देते हो? हाँ, इस नर्सरी से हम जो देते हैं, हमारे पास ये सेब के प्लांट हैं, वालनट है, उसके बाद पिकानट है, प्लम है, अप्रिकॉट है, पियर है। ये हम सब्सिडी पर देते हैं। जो प्लांट अब लगाते हैं फील्ड में, आर्चर्ड लगाते हैं, उनको देते हैं। अब मौसम में कौन कौन से पेड़ लगेंगे? इस वक्त हमारे पास ये पेड़ हैं, ये तो इस वक्त लगेंगे नहीं। पिकानट एक है जो हमारे पास इस वक्त लग सकता है। तो ये जो हाईटेक नर्सरी बनाई है सर, यहाँ पर ये जो बनाए हैं शेड, तो इनका कितना बड़ा चेंजिंग आई है? इनसे हमें काफ़ी चेंजिंग आई है, क्योंकि थोड़े से एरिया में हम बहुत ज़्यादा प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं इसमें। ये जो ऊपर सिस्टम लगाया सर, इसका कितना फायदा हो रहा है? जो ये बिजली लाइट की? हाँ, लाइट का हमें काफ़ी फायदा किया है। इसमें हमने ड्रिपिंग पाइप भी लगी हुई है, इसमें हम पानी देते हैं, और इसमें हवा के लिए पंखे भी लगे हुए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय बैंक समिति की बैठक। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने बैंकर्स के साथ मिलकर राज्य के आर्थिक विकास, ऋण वितरण की प्रक्रिया और वित्तीय समावेश को मजबूत करने के उपाय पर विचार विमर्श किया। धामी ने कहा कि बैंक क्षेत्रों को गांव देहात तक पहुंचाएं और नए व्यावसायिक अवसरों को सृजन करने के लिए सभी बैंक अधिकारियों को बेहतर तालमेल और सक्रिय भूमिका निभानी होगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सपने देखने से बढ़कर अपने रास्ते बनाने का मंत्र। मुंबई में आयोजित SMISSAP के 5वें वार्षिक सम्मेलन में अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने उपस्थित सदस्यों को एक प्रेरक संदेश दिया। अडानी ने कहा, मुंबई में मैंने जो भी हीरा तराशा, उसने मुझे धैर्य, सटीकता और दृढ़ता सिखाई। उम्मीदता कभी भी केवल महान विचार से शुरू नहीं होती, बल्कि ये एक दृढ़ विश्राम की चिंगारी और अनिश्चित भविष्य में कभी कार्य करने की साहस से जन्म लेती है। With this same spine of self-belief that I made my first bold decision at the age of 16. I bought a second-class train ticket and left for Mumbai with no degree, no job, and no backup, except burning desire to define my own path. आखिर में किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। My dear friends, in Mumbai, I began learning to sort and polish diamonds. Each stone I polished
taught me patience, precision, and perseverance. My first deal with a Japanese buyer on me rupees 10,000 in a commission. The money never mattered. The moment did. Because that was the moment when I realized that my beliefs would have to always outpace my doubts. And that is the truth about entrepreneurship. It never begins with a grand vision. It begins with a spark of conviction. It begins with the courage to act, even when the future is uncertain. And it begins with the willingness to dream alone and then walk alone before others join the path. क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो नींद उड़ा देते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व भुवनेश्वर स्थित कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान के IIT ड्रीम्स विश्वविद्यालय जर्मनी में आगामी विश्वविद्यालय खेलों 2025 में अपने 40 से अधिक छात्र एथलीटों का दल भेज रहे हैं। ये छात्र 7 विभिन्न खेल विद्यालयों के प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये प्रतिनिधित्व भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अब तक का सबसे बड़ा है और KIIT के संस्थापक डॉक्टर सामंत ने इस उपलब्धि पर गर्व जताया। City Games happens in many countries. This time it is happening in Germany. We are very much happy and proud that Odisha is also representing. Ours is KIT University, Kalinga Industrial Technology KIT University, also represent India through 40 athletes in this World University Games. Highest number of sports players from any university in India, that is from KIT. Second university representing 22 sports players. And second thing, Punjab is king in sports, there is no doubt in it. But Odisha is now the second highest to send the players to the World University Games with 42 athletes or the sports players. So both Odisha is proud of, KIT is proud of, and we always express our thanks, gratitude to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has been promoting sports and sports personnel like anything. That's why today sports has come to a reasonable position in the entire globe. We hope that our players will do good in the World University Games, and our student Miss Duti Chand has brought first gold medal to India from the World University Games when Duti Chand was the student of KIT universities. So today we are gathered here to convey the good wishes to all the players for their best performance and to bring the laurels for our country India. आगे सर आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मंडी में राहत कार्य जारी, रोपवे बना सहायता का जरिया। हिमाचल प्रदेश के माता बंगला मुखी रोपवे का सरकार के आदेशानुसार 12 पंचायतों के लोगों के लिए मुक्त कर दिया गया है।
मैनेजर कुश वैद्य ने बताया कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बाढ़ के बाद क्षेत्र का दौरा करते हुए रोपवे सेवा का एक समाप्त के लिए निःशुल्क करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 5000 लोग इस मुफ्त सेवा का लाभ उठा चुके हैं और 35 टन से अधिक राहत सामग्री भी रोपवे के माध्यम से प्रभावित इलाकों तक पहुंचाई गई है। थोड़े जाके बताओ जी, ये क्या है? बैठ जाओ भाई, एक ही साइड बैठ जाओ, कुछ साइड बैठ जाओ, कोई पावर मतलब डोर क्लोज। माई सेल्फ कुश वैद्य, रेजिडेंट मैनेजर माता बगलामुखी रोपवे जी। ये रोपवे से कितनी पंचायतों के लिए सप्लाई? सर इसके लिए हमने 12 पंचायतें पड़ती है सराज विधानसभा क्षेत्र में ना। हमने पहले 2 पंचायतों के लिए किया था, एक पांदली और बाखली के लिए। जैसे ही गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए तो हमने 12 पंचायतों के लिए इसको फ्री कर दिया था जी। ये किस लिए किया था आपने?
सर ये डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी यहाँ ने विजिट किया था, तो उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते के लिए इसको फ्री कर दिया जाए लोगों की सुविधा के लिए। आपदा जो आई थी जी, जो फ्लड हुआ था जी जी। और ये कितने मीटर इसकी लंबाई है? इसकी 750 मीटर की स्पैन है रोपवे का, और जो पहले जो रोड था वो 12 किलोमीटर जो है वहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है लोगों को, और इससे थोड़ा बहुत सुविधा होगी लोगों के लिए, और फ्लैश फ्लड में भी काफ़ी सहायता मिली है। और अभी तक कम से कम 5000 लोग यहाँ से ट्रैवल कर चुके हैं, जो आपदा में हमने फ्री किया है, और 35 टन तक का सामान हमने यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया है जी। नमस्कार सर, मेरा नाम भोग सिंह है, मैं ग्राम पंचायत कॉलोनी से हूँ और विधानसभा सराज से हूँ। ये रोपवे से आप क्या सामान भेजा जा रहा है और कितनी पंचायतों को भेजा जा रहा है और क्या सहायता मिल रही है? इस रोपवे से हमको बहुत सहायता मिली है। अगर इसका एक लक्ष्य ऐसा रहा कि अगर ये रोपवे नहीं होता हमारे बीच में तो हम कठिन परिस्थिति में थे। अब इतनी आपदा आ गई कि ना तो हमारे चलने का रास्ता रहा, ना तो गाड़ी का आना जाना बंद, सब कुछ बंद हो गया। एक पुल बाकली में, एक पुल हमारे कुकुला पंचायत में क्षतिग्रस्त हो गए, बिल्कुल चलने के लिए ना तो पैदल चलने के लिए रहे, ना तो गाड़ी के लिए आवाजाही रही, कुछ भी नहीं रही। यह है एक लक्ष्य हमारा ठाकुर साहब जयराम का रहा, जो ये रोपवे बना है एक हमारी एक स्माल बन के रह गई, और इसका आना जाना बहुत हमारा पीठ का बोझा भी चल रहा है, और सब कुछ सुविधा इसमें आना जाना और सामग्री इत्यादि चीज बहुत कुछ जा रही। पंचायतों को यहाँ से ये जी 15-16 पंचायतों के लिए हमारे लिए बहुत एक लक्ष्य की बात है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने जोधपुर में खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने जोधपुर में खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया और स्थानीय एथलीटों और प्रशिक्षणों से बातचीत की। मंत्री राठौर ने बताया कि जिम्नास्ट अभी भी खुले हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, जबकि पहले वे एक हॉल में प्रशिक्षण करते थे। उन्होंने कहा, मैं जयपुर लौटकर अधिकारियों से बताऊंगा कि किन उपकरणों और सुविधाओं की आवश्यकता है ताकि जिम्नास्ट को सुविधाजनक हॉल में प्रशिक्षण किया जा सके। बट जब से सीधे बड़ी है तो थोड़ा नाश्ता हो गया सबका? आप ठीक हो? हाँ सर, दलिया है, ब्रेड है, जैम है, जैम में तो बटर होता है, दूध है, दूध के साथ वो है। थोड़ा चलो मैंने कहा था ना ट्रेन कर दो, तुमने बोला ना मैंने तुम्हें। सर हमारे पुराने सीनियर प्लेयर्स हैं, जो लोग हमारे से निकल जाते हैं, हम उनको यहाँ पर एज ए गार्ड, एज ए वार्डन, एज ए असिस्टेंट कोच तंजीज करते हैं ताकि उन लोगों के घर का खर्चा चलता रहे और हम लोगों को जल्दी चलता रहे, क्योंकि 6000 रुपये में कोई भी व्यक्ति आता नहीं है। तो हम हमारे पुराने सीनियर बच्चे थोड़ा टेढ़ा भी बना लेंगे, किसी को देने में काम आएंगे। रहना खाना सर फर्स्ट टाइम किसी में 4 मंदिर ये पूरा वाटर कूलर लगातार चल रहा है, उसका पानी लगा शुरू करते 24 दिन पार्ट होते हैं। दिखा जाओ सर मैं मीटिंग और 24 से पार्ट टाइम होती है। इंटरनेशनल हम लोग करते हैं और एनआईसी को मनी सिंह की पार्ट रिटायर्ड है, ठीक है ना यहाँ से सॉरी हाँ तो ले लें। खिलाड़ी
मेरी आपके आप मेरे पास ही है, निकालो दूध सब निकाल लो, फिर वो ले लेंगे यार। कोई नहीं लेगा यार। हाँ नहीं लेगा। कहाँ है? नजर आई और क्या सुधार करने की आवश्यकता नजर आ रही है? जोधपुर में यहाँ पर आया था, इस एक कारण ये भी था कि यहाँ के अंदर, यहाँ जोधपुर में जो स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण करा जाए, यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत करी जाए, यहाँ के कोचेस से बात करी जाए। जिस तरह का इनकी इस फुटबॉल एकेडमी के अंदर रहने की जो व्यवस्था है उसको देखा मैंने। जो जिम्नास्ट यहाँ पर है उनकी इक्विपमेंट की जरूरत है। अभी जयपुर वापस जाकर मैंने अधिकारियों को बतलाया है कि कौन सा इक्विपमेंट है, उसके अंदर सुधार की जरूरत है और जल्द इनके लिए इक्विपमेंट की व्यवस्था करी जाए। दूसरा, जो जिम्नास्ट यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बाहर ओपन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहले एक हॉल में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनको जरूरत के हिसाब से शिफ्ट करेंगे, एक प्रॉपर हॉल के अंदर सुविधाओं के साथ, इक्विपमेंट के साथ वो ट्रेनिंग कर सके। फुटबॉल के अंदर कोचेस को अभी मैं बात करूंगा किस तरह से, किन जरूर सुविधाओं से यहाँ पर फुटबॉल का स्तर और बेहतर हो सकता है, इसको करवाएंगे। सर, इस स्टेडियम में बहुत सारा गंदा पानी भरा जाता है, अभी भी आप देख सकते हैं कि उस साइड में ऐसी जगह है जहाँ पे भरा रहता है, खिलाड़ी खेल नहीं पाते हैं। तो उस स्थिति में इसको कैसे सुधार में लाया जाएगा? क्योंकि ये मुझे अभी पता चला कि जो पूरा बाहरी क्षेत्र है, स्टेडियम पुराना है, तो जो बाहरी क्षेत्र है वो ऊपर आ गया है और जितना ही पानी आता है वो जमीन के अंदर, वो यहाँ से ऊपर आ जाता है वापस। उसका किसी जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या हो सकता है। सर, लघु उद्योग भारती के साथ किस तरह की मीटिंग रही इंडस्ट्री को लेके, और किस तरह से जो लघु उद्योग भारती के साथ लगातार हमारी बैठकें होती रहती हैं। हमने स्टोन मार्ट जो 2026 में होने वाला है उसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी भी लघु उद्योग भारती को दी हुई है और निश्चित रूप से इस बार जो 2026 का स्टोन मार्ट होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। हमारे राजस्थान के अंदर जो पत्थर हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं, मशहूर हैं पूरी दुनिया के अंदर। देश के अंदर ही बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनी हुई है, शानदार बिल्डिंग्स बनी है, उसके अंदर राजस्थान का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। राजस्थान का पत्थर दुनिया में मशहूर हो, यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करें, उसका एक आइडेंटिटी हो, अपनी पहचान हो, जियो टैगिंग हो उसकी, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ऐसा हो जो राजस्थान के जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लाइक स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि यहाँ के युवाओं को स्किलिंग भी हो और वहीं पर ही उनको व्यवसाय भी मिले। पॉलिशिंग है, मशीन की रिपेयर है, मशीन मेंटेनेंस हुआ, मशीन को ऑपरेशन हुआ, साथ में डिजिटल मार्केटिंग हुआ। सो हर तरह का जो स्टोन व्यवसाय या किसी दूसरे व्यवसाय के साथ जो स्किल जुड़े हुए हैं वैसे ही स्किल यहाँ पर हो, उसके लिए हमने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है अभी। उसके अंदर इंडस्ट्री के लोग होंगे, जिसमें हमारे इंडस्ट्री विभाग के भी होंगे अधिकारी, रिको के अधिकारी होंगे, स्किल के अधिकारी होंगे, और ये सब एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देगा कि निश्चित तौर पे राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान करके नए व्यवसाय को लाने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया है। बट उसके साथ साथ जो राजस्थान के अंदर जो व्यवसाय चल रहे हैं, जो उद्योग चल रहे हैं, उनको किस तरह की जरूरत है उसको भी ध्यान में रखते हुए कदम उठाएंगे। सर, कुछ गेम है जो ओलंपिक में है लेकिन राजस्थान क्रीड़ा परिषद में ऐड नहीं होता है, जैसे सॉफ्ट बॉल जैसे खेल है, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ जो रिकॉग्नाइज्ड खेल हैं जो ओलंपिक्स में हो रहे हैं उनको प्राथमिकता से उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। सर, एक मेरा सवाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे मोहन यादव जी, उन्होंने कहा कि 9% सागवान की लकड़ी एमपी से मिलती है और हैंडीक्राफ्ट उद्योग को लेकर वो लोग भी चिंता है, राजस्थान के साथ कोलैबोरेट करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने भी मीटिंग की। आपको क्या लगता है हैंडीक्राफ्ट का भविष्य किस तरह से उज्जवल है? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का बहुत काम होता है राजस्थान के अंदर और निश्चित रूप से हैंडीक्राफ्ट एक इस तरह का उद्योग है जिसको प्राथमिकता राजस्थान सरकार दे रही है और हमें बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी सरकार ने भी बनाई है। पहले एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं थी राजस्थान के अंदर। उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर अनेकों ऐसी सुविधाएं दी हैं जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ पोर्ट्स नहीं है, पोर्ट्स तक सामान साधन ले जाते हैं, सामान अपना प्रोडक्ट्स ले जाते हैं, उसमें खर्चा आता है।
उससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो और महंगा हो जाता है। तो वहां पर यहाँ से पोर्ट्स तक ले जाने का जितना भी खर्चा होता है उसके ऊपर भी सब्सिडी राजस्थान सरकार दे रही है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर हमने शामिल करे। सर सिंथेटिक जो ट्रैक बने हुए हैं गौशाला मैदान में, वो कई जगहों पे ट्रैक टूटे हुए हैं। वहाँ खिलाड़ी जब जाते हैं तो उनको अनुमति भी नहीं दी जाती है, रुकावट पैदा हो रही है क्योंकि वहाँ के लोग जो है उन्हें बाहर से अनुमति नहीं दे रहे। तो उसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? इसका प्रश्न नहीं समझा आपका। जो लेकिन टूटे हुए हैं वह अलाउ भी नहीं कर रहे हैं खिलाड़ियों। समय के साथ टूट गए, मेंटेनेंस नहीं हुआ। ठीक बात कर लेंगे शिक्षा विभाग। सर पूर्व मुख्यमंत्री। अब वक्त तो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।